Good evening, everybody. This is Ekta Sehgal Malhotra at the Motherhood Club Talk Show. We changed our time today because we have a special guest with us today. Because she not only is a mother, but she is a doctor. And when you invite a doctor to talk about her journey, we obviously have to pay more attention to the ones who she is taking care of currently and is required more. Welcome, Dr. Indu Bansal. Dr. Indu Bansal is an oncologist, a cancer specialist. She's an author. She has written many poetries, touching upon many and more serious topics, which many people shy away from talking about. She loves to dance and paint. She heads the oncology department at the Parag Hospital in Narayana Pat, Hospital, Narayana Hospital, Gurgaon. and yeah, she's also the pink ambassador for Global Women Without Peace. And like I said, not only a mother, a doctor, an author, painter, likes to dance, and above all, I would say this is my personal interaction with her, a wonderful human being. So, Dr. Bansal, a very, very warm welcome, to our show at the Motherhood Club Talk Show. And the topic that Dr. Bansal has chosen today is "मैं से अनमोल और मानसी तक," the first ever Hindi topic that we have at the Motherhood Club Talk Show. All of you must be wondering, ये कैसा topic है? And abhi tak, we've had topic talking about helicopter parenting, talking about mental health, talking about pregnancy after the age of 35. But this topic is truly encompassing the journey of Indu to Anmol to Mansi, because that is the journey of Indu when she was single, when she got married, and now she has two beautiful kids named Anmol and Mansi. So, Dr. Bansal, very warm welcome. And little I know of you, I have introduced you. Please introduce yourself in your own words, because Dr. Bansal is a wonderful human being and also a recipient of many accolades to her favor. Please share about that. And I'm very excited to hear your journey today. Thank you so much, Ekta, for having me here and all the lovely people who have joined. First of all, I must say that Ekta, you are looking stunning, gorgeous, beautiful, pink lady. आज तो pink investor आप लग रहे हो मैं नहीं लग रही हूँ. So I'm really touched by the Thank beautiful you. introduction that you have given about me. I don't know whether I deserve all these इतने अच्छे अच्छे जो शब्द आपने बोले, No, but you I'm deserve all of truly them. touched. I'm truly touched. So I would just tell a little bit about myself. So I was born in Delhi, and then I did my schooling from Gurgaon. We stayed in Bhutan for 4 years. My father was Uh, posted there, and I have a twin brother, so that's also something which is very close to my heart, and one elder brother. And I joined my degree in I did my MBBS from Rohtak Medical College, and then I did my MD from Rohtak Medical College. I passed out in 1998, so practically I joined oncology in 1996, and this is 2020, so it's close to 24 years in oncology. And so that is my little introduction. And of course, I head the Department of Radiation Oncology in Narayana Hospital, Gurugram, and I worked in various other hospitals like Northern Medical College, where I was treated so tenderly. I got so much loving care. I think I would call my boss as my father as well. He took, I mean, लोग how सब कहते हैं sweet. कि पीजे डिग्री में बहुत वो होती है, बट जितना उन्होंने मुझे प्यार दिया शायद कोई भी नहीं दे सकता. So I got so much love from my thesis guide and all the faculty there. And then I worked in Rajiv Gandhi Cancer Hospital. I worked in Batra Hospital. I worked in Artemis, Paras Hospital. से मेरी एक्चुअली गुड़गांव में ऑन्कोलॉजी की जर्नी की जो शुरुआत हुई थी, दैट वाज फ्रॉम No पारस. wonder Paras was in my head. Yes, yes, Sorry. yes. So, in fact, to the sense that I would say my journey started from there, and I'm still continuing with that journey because we are looking after
cancer radiation patients of cancer who need radiation. So I'm treating patients of Paras Hospital. So we have a tie-up for that as well. So my onco journey, Paras has a big role to play. And बाकी तो बहुत सारे लोग हैं जिनका मैं gratitude देने के लिए I think time बहुत कम रहेगा. So we will talk about them as we go further. Sure. So, your journey, your topic is very different, very unique. Anmol se Mansi tak. Hmm. So, please share, how, the journey was with two children, especially being a doctor. And, doctors are always on call. And, and your, line of work is very, very critical. Yeah. It's very important because not only do people fear the word, but the treatment is a very long term treatment, and it takes a lot of patience and energy from the doctor's side of it, and yet to be able to manage two children, and of course the passion that you have for writing, for dancing, for painting, so much in you. I would like to know, and I'm sure everybody would like to know that how did you manage all of that? How was your entire journey with your two kids till date? So I would say that my journey in oncology, uska pura jo credit jata hai, that goes to my father, because way back when in '96 I joined oncology, then nobody thought oncology would be such a sought after branch. But पापा ने बोला कि नहीं, तुम्हारे अंदर जो वो है, I mean, you are so loving and caring, so you should do something which आई नो कि जिसमें थोड़ी सी करुणा भाव चाहिए. सो ही आस्क्ड मी कि ऑंको का आगे बहुत फ्यूचर भी होगा. सो ही वाज द वन हु एक्चुअली guided me to join oncology. And as I said, Dr. BP Das was my head, and 96 में I got married. And so 98 जो हमारा MD का टाइम होता है, which is a very tough exam, and I got pregnant in 1998, and I had to write my thesis as well at that time. Okay. तो बहुत ज़्यादा पढ़ाई होती थी. थर्ड फ्लोर पे हॉस्टल में हम लोग रहते थे. वी डिडंट हैव अ हाउस एट दैट टाइम. हॉस्टल में हम लोग रहते थे. बट एज आई सेड कि बिकॉज आई हैड अ वेरी लविंग गाइड एज अ पेरेंट, आई वुड से एज अ सेकंड पेरेंट देयर, ही वाज सो काइंड कि मैं उनके घर में थीसिस लिखने के लिए जाती थी तो वो मुझे बोलते थे कि नहीं, तुम्हें भूख लग गई होगी. सो ही वुड, आप बिलीव नहीं करोगे, वो मेरे लिए छोले भटूरे बना के मुझे देते थे खुद अपने हाथ से. सो आई वॉज पैम्पर्ड अ लॉट. बहुत मैंने काम किया. इनफैक्ट लास्ट डे जिस दिन मैं हॉस्पिटल में थी एंड आई वॉज हैविंग पेन्स एंड आई वॉज ऑन माई ड्यूटी बिकॉज, और उसी साल मेरे एग्जाम्स भी थे. मतलब जब मेरा बेटा पैदा हुआ उसके 2 साल के बाद मेरे एमडी का एग्जाम भी था. So it was a very busy period at that time, and I was on duty. And then I said that I'm feeling some uncomfortable feeling, and I went to my gynecologist and said कि मुझे कुछ ठीक सा नहीं लग रहा. तो she said कि तुम पागल हो गई हो, तुम अब डॉक्टर हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें सब पता है, and you should be in hospital admitted at this time. And she admitted me there and then. और उन्होंने बोला तुम्हारे घर से तुम्हारे कपड़े वपड़े सब कुछ घर से सामान में मंगा दूंगी. एंड उस टाइम पे आई थिंक एपिड्यूरल एनेस्थीसिया बिल्कुल जस्ट शुरू हुआ था. एंड जो हमारे गाइड थे, उनके एक और डिपार्टमेंट में एक दूसरे टीचर थे, डॉक्टर हुडा, उनकी वाइफ शी वाज एन एनेस्थेटिस्ट, एंड शी सेड आई वांट टू गिव यू एपिड्यूरल एनेस्थीसिया. सो मुझे लगा कि मतलब एक बेसिकली एक तरह से मेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट हुआ था. एंड आई हैड अ वेरी प्रोलॉन्ग्ड लेबर. सो माय पेन स्टार्टेड एट 11 o'clock in the morning when I was on duty, and I gave birth at 11 o'clock in the night. Oh So it God, was such 12 hours. और एनेस्थीसिया भी पूरा नहीं दिया था उन्होंने, क्योंकि they had didn't have too much experience. So I had all the labor pains plus the pains of that epidural catheter, and then I delivered at 11 o'clock in the night. और एक और जो इंटरेस्टिंग बात हुई वो ये थी कि उस टाइम पे बिकॉज आई वॉज इन मेडिकल कॉलेज, तो हमारी फ्रेंड्स ही थी जो कि अल्ट्रासाउंड वगैरह रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में थी. सो शी एवरीवन सेड यू हैव अ डॉटर, यू हैव अ डॉटर. सो जब मेरा मतलब एंड जब मेरी डिलीवरी हुई तो एक बेटा उन्होंने लाके मेरे गोद में दे दिया. एंड आई सेड ये किसका बच्चा है? So my anesthetist, she was such a sweet lady. She was the head of the department.
and she was throughout my pregnancy, throughout my labor pains, she was in OT, and she said कि तुम्हारी डिलीवरी मैंने कराई है, यहाँ पे इमरजेंसी में सिर्फ तुम्हारी डिलीवरी हुई है और तुम पूछ रही हो किसका बच्चा है. So it was a very very different experience, and सारे लोग आ गए हॉस्टल में, हम लोग रहते थे, तो there were so many people, and then I informed my in-laws कि उनको सबको पता था बेटी होने वाली है, and then I got Anmol. So I wanted a daughter. मैंने बहुत सारे गर्ल्स वाले कपड़े लाके रखे हुए थे, and then So how did you, so that time you knew what the gender of the baby was? that time they could tell, na, that time there were no restrictions. Wow, that is quite. And at that time actually, because radiology department में भी हमारी friends ही थी who would do ultrasound, तो वो अपने सब कुछ नहीं बताती होंगी, but उन्होंने मुझे बोला, and I had Anmol. So then I kept this. तो वहीं पे हमारी जो एक sister थी labor room में, उन्होंने बोला कि ये तो अनमोल हो गया बच्चा. So then we kept his name as. How sweet. So that is how Anmol was born, and I remember the whole night I could not sleep. क्योंकि मैं बस उसको देखे जा रही थी, मुझे डर लग रहा था कि मेरे नीचे दब जाएगा बच्चा. I did not sleep a single minute that day, and it's such a pleasant feeling. I mean, I think I transformed overnight into a mother from. क्योंकि बाकी मेरा पूरा टाइम तो था वो सारा का सारा पढ़ाई में लगा हुआ था. I had to submit my thesis and all. और 2 महीने के बाद मेरे एग्जाम्स थे, तो मुझे सब लोगों ने बोला, इन-लॉज ने बोला कि 6 महीने पढ़ाई लेट कर ले, and there is no sense to carry on with the because you won't be able to take care of this, and I had to study. So you won't believe that of course he would get up in the middle of the night to take feed, और मुझे मेरे से मैं लिटा के फीड नहीं करा पाती थी. So whenever he would get up for feed, I would get up in the night and switch on the lights and start studying. क्योंकि मुझे 1 घंटे तो जागना ही जागना. So that is how, मतलब रात रात में उसकी फीडिंग होती थी, मेरे सामने बुक्स होती थी. That is how I appeared for my exams. Within after 2 months there were my exams, and जो डॉक्टर साहब है उनकी बुआ जी आई थी हमारे साथ रहने के लिए. She took such a good care of me. She's alive, and she's such a, मेरा उनके साथ एक बहुत special bond है. She took care of me, and दो महीने बाद जब मैंने एग्जाम्स दिए and I topped. So wow. तो किसी ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, बिकॉज एवरीवन थॉट कि ये तो मुश्किल से पास होगी, बट एम्स से हमारे एग्जामिनर आए थे. सो आई हैड 2 एग्जामिनर्स, वन वाज फ्रॉम एम्स एंड अनदर वाज वन फ्रॉम शिमला. तो उन्होंने बोला कि तुम ये सब कुछ तो हमने सोचा भी नहीं था कि तुम्हें पता होगा, एंड हाउ डू यू नो इट. सो थैंकफुली माई एग्जाम ऑल्सो वेंट वेरी वेल, एंड वहीं पे एक क्रैच था पास में. सो 2.5 months का मेरा बेटा था, जिसको फिर हमने क्रैच में छोड़ा, बिकॉज आई हैड जॉइन माई ड्यूटी ऑन 8th day ऑफ माई डिलीवरी. So that is how it went, because I could not afford to take leave. So I think 8th day exactly was when I joined back my duty for the first time. He indeed is an Anmol baby, you know. I mean, you talk, wow. Yes. How many would really think that, you know, once you delivered a baby, I mean, getting back to work, okay, I was a little crazy person. I thought delivery date, I was on the phone. Yeah. But to study and, you know, while you're feeding the baby, hats off to you. I mean, that's really, really commendable. So does he know this, that this is how you had, you know, completed your thesis and your exam? Yes, yes. I am blessed. I have very lovely children. I have a very loving husband. मतलब बहुत ही प्यारा सा, मतलब I would say that now we would be married for close to 25 years next year. But touch wood, we never had any major fight. It was छोटा मोटा थोड़ा बहुत कुछ होता है, but so blessed am I. Just adding spice to life. Sorry. Little bit spice. Little थोड़ा बहुत spice. हाँ, वो थोड़ी देर का, 15-20 minutes का. That's it. That's how it works. Wonderful, wonderful. So then, how did the journey pursue? You know, you left him at the crèche, and I mean, he was very tiny. And then, you know, how did it proceed? And what were your emotions, you know, when you used to leave him at the crèche? So I would say that बहुत लोगों का बहुत प्यारा साथ रहा है. जो हमारे
क्रेच में आंटी थी. आई एम स्टिल इन टच विद देम, ऑल्दो उस टाइम हम रोहतक मेडिकल कॉलेज में थे. दे लिव इन रोहतक. सो वेन एवर आई गो टू रोहतक आई इंश्योर दैट आई गो एंड मीट देम. और वो इतना प्यारा अंकल आंटी थे कि वो, आप बिलीव नहीं करोगे, बहुत सारे क्रेच में बच्चे थे और भी बहुत सारे डॉक्टर्स के बच्चे वहां पे आते थे, बट उनको भी कुछ अनमोल से स्पेशल अटैचमेंट थी, या समझ ली मुझसे और हमसे थी अटैचमेंट. तो बाकी सारे बच्चे, उनका जो एरिया था जहाँ पे क्रेच में रहते थे, और वो अनमोल को अपने बेड पे सुलाती थी, मतलब जितनी देर में हम लोग वहाँ रहते थे. सो उन्होंने इतना प्यार दिया कि कभी उसे कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ. और वहाँ पे बस एटलीस्ट एक फायदा था कि दिल्ली की भागदौड़ नहीं थी, तो 9 to 4 की ड्यूटी होती थी. तो मैं सुबह सुबह सारा उनका टिफिन वगैरह पैक करके देती थी. किसी दिन कुछ कम रह जाता था तो आंटी अपने आप खिला देती थी. So that is how it went, because Mary, when I got married, my mother-in-law was not there. She had already, she was no more. So there was no one who could come and stay with me. So शुरू में तो वहाँ पर रोहतक मेडिकल कॉलेज में we did not have any full time mates. उस टाइम पे कोई concept भी नहीं था. So 9 to 4 the kid would stay at crèche. तो 9 बजे मैं छोड़ते हुए जाती थी और 4 बजे फिर मैं उसको लेते हुए घर आती थी. दैट इज हाउ. और फिर साथ में पढ़ाई तो थी हमारी अपनी, वो सब तो चलता ही रहता था. बट डॉक्टर वॉज सपोर्टिव, सो ही वुड हेल्प मी. और मेड जो थी वहाँ पे उस टाइम पे, इतने टाइम पे ना हमारे पास इतने पैसे होते थे, लेट मी बी ऑनेस्ट. वी यूज्ड टू गेट वेरी लिटिल मनी. उसमें आपको घर का किराया भी देना होता था, तो आई कुड नॉट अफोर्ड टू हैव अ फुल टाइम मेड. दैट वाज अनदर इशू. सो वो जो डे केयर में जो मतलब घर की सफाई पोछे बर्तन करने के लिए आती थी, बस वही थी. बाकी आई वुड मैनेज. सो वो किचन में ही उसका क्रैच, वो झूला रहता था जिसके साथ में खाना वाना बनता रहता था, या गोदी में बच्चा लेटा होता था. सो दैट इज हाउ. बट somehow everything went very smoothly. And then in 2000, 2 years later, Mansi was born. That time I was a lot much relaxed. And जैसे अनमोल के टाइम पे it was a 11 hours pain. This time, again, it was a very interesting story. Next day, my husband had an exam. And in fact, he wanted to do DM in medical oncology. He wanted to study medical oncology. So अगले दिन उनका एग्जाम था और मैं उनको पढ़ा रही थी कि ये क्वेश्चंस तुम तैयार कर लो. They might, he had to appear for AIIMS medical oncology exam. And it was 6 in the evening. And, हम लोग पढ़ रहे थे, चाय बना रहे थे. And I said कि something is not right. So वो भी thankfully हमारी जो गायनेकोलॉजिस्ट थी, डॉक्टर पुष्पा, शी वाज आल्सो अगेन अ वेरी स्वीट लेडी. सो मैंने उनको फोन किया, उन्होंने बोला तू घर आ जा. आई वेंट टू हर होम. एंड देन अगेन दोनों बार मेरे साथ ये हुआ कि मेरे जो गायनेकोलॉजिस्ट थे उन्होंने मुझे लिया, वो मुझे हॉस्पिटल ले गई कि तुम्हारा सामान तुम्हारे हस्बैंड लेके आते रहेंगे. इनफैक्ट शी सेंड समवन कि तुम्हारे हस्बैंड का एग्जाम है, उनको पढ़ने दो और मैं अपने आप किसी को भेज के कुछ घर से तुम्हारा सारा सामान मंगा दूंगी. And within 2 hours, I mean, before he could reach, by 8 o'clock, within 2 hours, Mansi was born. वो तो पता भी नहीं चला कि कब कैसे हुआ. So So, that, so I'm very tempted to ask you this. You know, जब अनमोल हुआ तो आप पढ़ रहे थे, जब मानसी हुई तो आपके हस्बैंड पढ़ रहे थे. How how inclined are the children towards medicine? Because you know वो तो सारा दिन, you know, as they say कि अब the way Abhimanyu had invaded the chakra, तो वो तो माँ की womb में ही इतनी सारी चीजें, and it has been proven that you know children do listen. So are your children in any way inclined towards you know towards the medicine field? so if I tell you that my son is in final year of MBBS. Wow. So he is Excellent. he is in Maulana Azad Medical College, Delhi, Mamsi. He's a final year. He's in final year of MBBS. So वो डॉक्टर बन ही गया ऑलमोस्ट. सो मुझे कभी नहीं लगता था कि वो डॉक्टर बनेगा, बट व्हेन ही सेड कि आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर, सो आई वाज रियली सरप्राइज्ड, क्योंकि मुझे लगता था कि ही इज मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स इंजीनियरिंग और समथिंग. बट ही अनाउंस्ड नो, आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर. सो ही बिकेम अ डॉक्टर. बट माई डॉटर, जब वो उस टाइम पे मैं बहुत रिलैक्स थी, सो आई वाज डूइंग अ लॉट ऑफ क्रिएटिव थिंग्स, लेट मी बी ऑनेस्ट. सो आई यूज्ड टू स्टिच क्लोथ्स फॉर हर. मैंने छोटे छोटे Wow. ड्रेसेस बनाई थी. सो मैं वो सब करती थी उसके लिए. तो she went into creative field, and she is into National Institute of Design, NID Ahmedabad. So she is in second year of designing, and she is very creative. So वो शायद जो आपने बात बोली, I think
for my children, both things they proved, because at that time I was studying a lot. He became a doctor, and at that time I was into a lot of creativity. So उस टाइम हमारे I had a very close group of friends जो that time I was in again in रोहतक मेडिकल कॉलेज, और हमारे वहाँ पे बहुत प्यारा सा ग्रुप था फ्रेंड्स का हमारे डिपार्टमेंट में. तो हर 15 दिन में किसी न किसी के घर पे 15 दिन में या महीने में पार्टी होती थी. सो एवरीवन उस टाइम पे कुछ बाजार से बहुत मिलता नहीं था. इफ यू टॉक अबाउट 2000, सो हम लोग घर कुछ कुछ बनाते थे. सो आई यूज्ड टू मेक चॉकलेट्स एंड एवरीवन वुड डिसाइड अ डिफरेंट मेन्यू. Right. तो तब हम लोग बहुत अलग अलग सी चीजें बनाते रहते थे. सो डेकोरेट होम एंड कुकिंग एंड डिजाइनिंग एंड all those things. So that's how So, it happened. matlab, we've also now got to know that there is a creative. Of course, she did mention that she likes to paint, but stitching clothes on her own, cooking. I mean, there are very few doctors who we really know who have all these kind of passions, because as a doctor, it's very understandable that it's a very time-consuming profession, that you get. But I mean, really, hats off to you. So So there is a comment. Ekta, if I tell you that I got first prize as the master chef of Paras Hospital, and I got prize twice as master chef of Artemis Hospital also. Wow, congratulations. That's wonderful. And, there is a comment that has come from Akansha saying that it is always a privilege to hear you. And I would completely second what she's saying, that, every time I get to speak to you, there is a new aspect of you that I get to know. Poetry, one after the other is fabulous. And now you're telling that, you won Master Chef, you like to paint, dance. I mean, you're just a complete package. I'm sure, your family members, your husband, and your children will be so proud of you. So recently, there is a book. It's a very well-renowned book in oncology. That's Bethesda Handbook of Oncology. It's written by American authors, and वो अभी just published हुई है. And I've published whole of gynecological section in that. Or I have few book chapters. I write in journals. I write for magazines and webinars, और हमारे जो होते रहते हैं academic webinars. So in this lockdown period, I would have done close to 40 webinars also that time. So I don't know, बस हो जाते हैं. I don't know how it just happens. So, coming back to the journey of being a mother, with a tough schedule, and as a medical practitioner, you are always upgrading your knowledge, because itni changes होती हैं, and especially in the field of oncology, because that was a very new field. And as you said, that that your father said that there is a lot of scope in it, and plus the inherent nature that you have. So, how were you able to balance with your children, when they were growing up, padhai and all these other things? So आपकी involvement कितनी रहती थी उसमें? So I have been always very much involved in them. मतलब मैंने in fact I would say कि 10th 11th तक बच्चों की कोई ट्यूशंस नहीं थी. So I would teach them. मतलब इनफैक्ट ये था कि एक एक चीज मैंने उनको सिखाई. उनके होमवर्क्स होते थे, जैसे हॉलीडे होमवर्क्स होते थे, तो इनके बेस्ट होमवर्क्स होते थे, बिकॉज जब हॉलीडे होमवर्क्स होते थे तो हम लोग पूरा हमारा मतलब ऐसे जमीन पे चटाई बिछ जाती थी, और उतना हम लोग क्रिएटिव उसमें काम करते थे, तो बच्चों को बहुत परफेक्शनिस्ट होने की आदत हो गई. सो व्हाट आई इंश्योर्ड वाज, आई थिंक द ओनली टिप दैट आई वुड लाइक टू गिव हियर इज कि घर कभी सफर नहीं होने दिया, बच्चों की पढ़ाई सफर नहीं होनी थी, बट उसके साथ सिर्फ फर्क ये पड़ता था कि उनका पूरा सब कुछ करके when they would go off to sleep, say when they have settled down by 10 o'clock, then I would sit down to read, and then I would sit up till 4 o'clock or so, and then again get up at 6 o'clock in the morning to prepare their tiffin and everything. So that is how it worked. But thankfully, as I said, कि बच्चों ने कभी तंग नहीं किया, and at a lot of time I had a full time maid also. So वो था. और दूसरा ये था कि जब हम my husband, he used to take care of it. So but he is also a very very busy doctor. So उनका भी he goes at 9 o'clock and then till 10 o'clock he is busy that way. But ये था कि जब बच्चों के लिए किसी भी चीज की जरूरत पड़ी, so I was always there for them.
सो बी इट, अगर उनको कोई कोचिंग क्लासेस में लेके जाना है 11th 12th में, तो उनको छोड़ के आना, दैट वाज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। उनके लिए उनको कोई मार्केट से कोई चीज़ लेके आनी है, दैट वाज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। उनको उनके फ्रेंड्स के घर छोड़ के आना है, दैट वाज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो दैट इज हाउ, बट उसमें बस यही है कि अपना जो भी कुछ करना होता था वो फिर मेरा रात के 11 बजे शुरू होता था। सो ईदर आई वुड start working at 11 o'clock and be on the computer till 2 o'clock or 4 o'clock, or I would sleep at 10 and then get up at 4 o'clock or 5 o'clock and then do my work. बट क्योंकि हम लोग पेशेंट्स के साथ काम करते हैं तो उसमें हम केयरलेस नहीं हो सकते। सो आई हैड टू रीड एंड आई हैड टू keep on giving my all my lectures and study for that time. In fact, अभी कुछ 2-3 साल पहले तक when I was working at Max, then I would leave home at 8 o'clock in the morning, then I would go to see patients at my clinic, then go to Paras Hospital, then from there go to Max Saket, work there till 7, 7:30, 8. In fact, I worked there till 9 o'clock in the night, and then come back at 10:30 or 11, and then looked after my home, and then worked. So that is how it happened. But I would say God has been kind. और मेरे पेरेंट्स का घर पास में था, सो एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट उनका बहुत बड़ा था कि कुछ भी दिक्कत होगी तो बच्चे उनके घर जा सकते हैं या वो लोग आके उनको देख सकते हैं। दूसरा ये था कि बिकॉज वी वर स्टेइंग इन गुड़गांव बट आई वाज वर्किंग इन दिल्ली मोस्ट ऑफ द टाइम्स, लाइक इन बत्रा और पारस हॉस्पिटल, बत्रा हॉस्पिटल और मैक्स हॉस्पिटल। सो बट माय हस्बैंड, हमारा घर फर्स्ट फ्लोर पे था और क्लिनिक ग्राउंड फ्लोर पे था। सो उस तरह से ही वॉज देयर इफ चिल्ड्रन नीडेड anything. So that was one plus point which really helped me do everything. I mean, really very, very commendable, to have been able to manage your personal life and professional life so wonderfully. And for all of you who are hearing us, that, when I said that Dr. Indu Bansal is a very good human being, I'm not just saying this just to please anyone over here, but there are so many patients of Dr. Bansal who, have reached out to her in the recent past and have acknowledged the good work that she has done, that extra mile that she walked. And I'm sure if, when her father said, कि उनमें बहुत करुणा है, she actually has depicted that. And imagine if she is like this with her clients, patients, how would she be as a mother? Absolutely full of love. But was there any time that you got flustered? There is so much on your plate to do. You have to look at the profession, घर, बच्चे. So कभी एक ऐसा moment आया, and if that came, how did you deal with that? So the journey has not been easy, I must say. So जो आपने बोला, I was working in Rajiv Gandhi Cancer Hospital in 2002. My daughter was hardly 2 years old. So मेरी night duty थी, and I came back home. I mean, मैं जैसे सुबह 7 o'clock गई, and next day I came back home at 2 o'clock, 2 o'clock or 3 o'clock next day. So when I came back home, my daughter, a person had come to work on the computer ठीक करने के लिए आया था, and my daughter was wanting so much of love from anybody that she was sitting in his lap. And you won't believe, मेरा दिमाग घूम गया, मुझे इतनी टेंशन हो गई कि मैं कर क्या रही हूँ, what am I doing? कि मैं इतनी छोटी सी बच्ची को छोड़ के I'm working and I'm going out of the way, और मैं इतना ट्रैवल कर रही हूँ. You won't believe, that was, I think that was 2004. 2004. She was 4 years old. Next day I went and resigned. मैंने रिजाइन कर दिया, मुझे लगा कि दिस इज नॉट वर्थ इट. एट दैट टाइम देयर वर वेरी फ्यू कैंसर हॉस्पिटल्स. गुड़गांव में कोई भी कैंसर हॉस्पिटल नहीं था. दिल्ली में प्राइवेट के नाम पे सिर्फ बत्रा हॉस्पिटल था, राजीव गांधी था, और कुछ हॉस्पिटल्स थे, 3-4 हॉस्पिटल्स थे. देयर वर नो जॉब्स एंड आई रिजाइंड. 2000 में मैंने रिजाइन किया, 2000 दिसंबर में. And when I resigned, so everyone thought that she is finished now, because ऑन्कोलॉजी की प्रैक्टिस कोई प्राइवेट प्रैक्टिस कर नहीं सकता. एंड उन्होंने सबने सोचा कि अब तो ये बच्चे ही पालेगी, ये कहाँ से डॉक्टर बनेगी. यू वोंट बिलीव, पीपल स्टॉप टॉकिंग टू मी. मेरे जो ब्रांच के लोग थे, उनको लगा कि इसका तो अब करियर खत्म है, तो इसके साथ अब दोस्ती बना के रखने का कोई फायदा नहीं. सो एंड देन 2005 आई स्टार्टेड माई ओन क्लिनिक इन गुड़गांव. सो उस टाइम पे एक ही डॉक्टर थी जो कभी कभी वहाँ पर आती थी, बट देयर वाज नो
other doctor who was practicing oncology in Gurgaon. And I went and met so many people. Ki, if you have any patient, please let me know. I want to see them. So at 2004, of course, I was very young. और लोगों को ये लगता था कि ये छोटी सी डॉक्टर कैंसर के पेशेंट्स कहाँ से देख पाएगी. So they would either laugh at me और या वो मुझे कोई काम ही नहीं देते थे. But then I started my practice, and then I started going to बत्रा हॉस्पिटल जस्ट लाइक दैट. तो मुझे बहुत लोगों ने बोला तुम कि तुम अपने हस्बैंड के साथ बैठ जाओ, तुम कोई डिप्लोमा कर लो. ऐसे मैंने इतने साल ऑन्कोलॉजी में लगाए हैं, सो आई विल डू ऑन्कोलॉजी ओनली. सो मैंने गुड़गांव में स्कूटर पे, कभी रिक्शा में, आई यूज टू सी फ्री पेशेंट्स थ्रू आउट गुड़गांव. मेरे को ड्राइविंग नहीं आती थी उस टाइम पे. देन आई स्टार्टेड गोइंग टू बत्रा हॉस्पिटल. जो मेरे पास क्लिनिक पे पेशेंट्स आते थे जिनको रेडिएशन की जरूरत होती थी, आई वुड जस्ट एक्कम्पनी देम, ताकि मेरा मेरा जो टच है ब्रांच से वो ना छूटे. आई वुड नॉट गेट एनीथिंग, एनी सिंगल पेनी इन रिटर्न. रादर आई यूज टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन ड्राइवर एंड पेट्रोल. I treated so many patients free. Means they were being treated under some other doctor, but I was just as a support system for them. फिर धीरे धीरे लोगों को समझ में आया कि she wants to work, and then they gave me an attachment. So for so many years, everyone thought that she's finished, but इतना मैंने गुड़गांव में कोई कॉर्नर ऐसा नहीं छोड़ा था जहाँ पे जाके मैंने पेशेंट्स नहीं देखे. एंड देन इन 2008 में पारस हॉस्पिटल, मैं हमेशा पारस हॉस्पिटल का नाम लेती हूँ. पारस हॉस्पिटल उस टाइम पे बन रहा था 2006 में. So I went and met Dr. Dharminder Nagar, who is the owner of Paras Hospital. And उनका भी chamber भी नहीं बना था. He used to sit in a tent sort of a thing, shed. And I said that I want to set up oncology here. So he said, तुम कैसे करोगे यहाँ पे? Oncology cannot run like this. I said, you just give me OPD. You let me see, you let me work. I don't know what he saw in me. And he said, okay, you start working here. And then that's how I got a permanent place to work. And then धीरे धीरे people came to know that yes, she wants to work. पारस में बहुत, I set up oncology department. फिर मुझको Artemis Hospital से offer आ गया. Then Max people called me. And मतलब वो फिर धीरे धीरे बहुत सारे लोग जुड़ते चले गए. So that's how I would say I would always be indebted to few people like Dr. Dharminder Nagar, Dr. Day है, Sudarshan Day, who helped me, Dr. Anand, हमारे जो अभी हॉस्पिटल के ऑनर हैं, डॉक्टर देवी शेट्टी, कमांडर बाली. देयर आर सो मेनी पीपल, डॉक्टर बीपी दास, डॉक्टर हुड्डा, डॉक्टर कौशल, डॉक्टर चौहान. आई मीन इतने सारे लोगों ने मुझे सपोर्ट किया कि दे जस्ट हैड फेथ इन मी. बिकॉज आई थिंक हर फीमेल की लाइफ में वो टाइम आता है जब आप एक तरह से फिनिश हो जाते हो, आपका करियर ब्रेक आता है. बट उस टाइम पे आपको हिम्मत नहीं छोड़नी होती. दैट्स इट. इफ यू हैव फेथ इन यू दैट यू कैन डू इट. सो अभी भी मैं अगर किसी को बोलती हूँ आई एम द फर्स्ट ऑन्कोलॉजिस्ट ऑफ गुड़गांव. एक डॉक्टर भावना है, शी यूज्ड टू वर्क बिफोर मी, बट तो लोगों को लगता है कि सब लोगों को लगता है कि शी इज डायरेक्टर रेडिएशन ऑन्कोलॉजी. इट्स एन केक वॉक कि ये बहुत जल्दी वहाँ पे पहुँच गई हैं. बट actually it's a lot of hard work, and you cannot do that without support from your family. So Very मेरे true. बच्चे बहुत समझदार हैं, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया. इनफैक्ट अनमोल वॉज जब बहुत छोटा था तो मैं कभी डिप्रेस होके घर आती थी तो वो मुझे, वो कभी कभी इतनी सिंपल सी बातों में इतना सिंपल सा सोल्यूशन मुझे दे जाता था. मम्मा आपको किसी ने ऐसे बोला, आपने ऐसे क्यों नहीं बोला? या मम्मी अच्छा आप ये सोच रहे हो इस जगह जॉब के लिए अप्लाई करो, कर दो ना अप्लाई, जॉब मिलेगी तो भी ठीक है, नहीं करोगे तब तो मिलेगी ही ना, मिलेगी ही नहीं. आई मीन समटाइम्स किड्स कम अप विद सच वंडरफुल सॉल्यूशंस कि आपको समझ भी नहीं आता कि ये बात तो किसी बड़े ने भी मुझे नहीं समझाई. So you have to have faith in your children, and they take you places. Let me tell you, they take you places. So मुझे मेरे बच्चों ने थैंकफुली कभी भी तंग नहीं किया. 12th में भी मैंने कभी एक दिन की छुट्टी नहीं ली उनके साथ बैठ के. बट आई वॉज देयर फॉर देम. बट ऐसा नहीं हुआ कि मैंने घर अपना जॉब छोड़ के बैठी हूँ उनके साथ में. बट उन्हें जब जरूरत हुई, उनका कोई एग्जाम दिलाना है, तो आई वॉज देयर. इट वॉज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी. दैट्स हाउ इट जस्ट हैपेंड. True. So lovely, very rightly said that our children teach us so many things. Because, I think we adults make life so complicated. And, we always try and think that, oh, it's a very complicated situation. So there will be a very complicated solution. But children in very simple way convey the best solution that
you would not even fathom that अच्छा ये भी हो सकता था and ये तो इतना आसान था करने के लिए. But Dr. Bansal, really hats off to you, and for all those who are hearing. I mean, here is a woman of its who did not get things easy, who fought her life for her passion. She made sure that her family is taken care of. Her children are doing wonderfully well. She is practicing so well. What more would someone want from life, and she always expresses her gratitude, and I'm sure her children are also be might be totally indebted towards the grooming and the values that you and Dr. Bansal or Agarwal, Dr. Agarwal. He is Dr. Harmesh Agarwal. And Dr. Agarwal would have imbibed in the children. So it's wonderful. So आप कोई ऐसी memory आपको याद है बच्चों के साथ which you would like to share, and which was like a thought provoking thing for you, या कुछ एक अलग सा ही change या बदलाव आया आप में? So एक बहुत ही जैसे मैंने बोला कि मेरी बेटी भी क्रेच में जाती थी and अनमोल was only 2 years old. So वो जो क्रेच वाली आंटी थी वो बहुत ध्यान रखती थी, बट अनमोल का एक बहुत खास चीज थी, मैंने देखा कि बच्चे बहुत समझदार होते हैं. वो जितनी देर ये पालने में सोती थी, ही वुड बी स्टैंडिंग बाय हर. वो खड़ा रहता था पूरा टाइम कि मेरी बहन को कोई हाथ ना लगा दे, इसकी नींद को कोई डिस्टर्ब ना कर दे. एंड यू वुडंट बिलीव, जो हमारे उस टाइम पे एक बेड था, बेड के उस टाइम पे बॉक्सेस होते थे ना, जो बेड में आप थोड़ा सा सामान रख सकते. तो जब अनमोल हुआ था, उसका कुछ सामान उसके अंदर रहता था, बॉक्स के अंदर. जब मानसी होने वाली थी तो मैंने आई टोल्ड हिम कि मुझे ये बहुत डर लगता था कि कहीं सिबलिंग राइवलरी ना हो जाए. तो मैं उसको बोलती रहती थी कि तुम्हारा बेबी आ रहा है घर में, तुम्हारा बेबी आने वाला है. सो यू वोंट बिलीव, उसने 2 साल का बच्चा, व्हाट ही डिड वाज कि जो मैं मानसी के लिए छोटे छोटे मतलब उसके नैपीज वगैरह वो सब चीजें लाई थी, एक दिन वो अपने आप बेड का वो शेल्फ खाली कर दिया उसने. जस्ट अ 2-year-old child, and he was placing all Mansi's things in that place. I was truly touched. मैंने कहा ये अनमोल ये क्या कर रहे हो बच्चे? बोले मम्मा नाउ शी विल नीड मोर केयर, सो आई डोंट वांट यू टू गेट अप एंड कि आपको उठ के जाना पड़े. आई एम ग्रोन अप नाउ. मतलब वो छोटा सा था, मतलब बाय हिज जेस्चर्स ही टोल्ड मी कि now I am there to take care of her. I'm So the big brother. I'm the big brother. तो उसने हमेशा इतना उसका ध्यान रखा, और इन दोनों की बॉन्डिंग अभी भी इतनी प्यारी है कि वो बिलीव कि मानसी को अगर कोई कोई लड़का कुछ बोलता है सपोज, सो दे शेयर सो मच विद हर कि वो अपने कॉलेज में भी गई है, वहाँ पे भी इनके वहाँ पे एक डेट वीक होता है इनके कैंपस में, उसमें पीपल प्रपोज ईच अदर, इट्स जस्ट फॉर फन. तो वो मुझे कुछ भी बताने से पहले शी वुड कॉल हिम एंड टेल कि भाई बता इससे बात कर लूं कि नहीं कर लूं. So they have such a beautiful bonding between the two of us, between the two of them. And बहुत बार ऐसा होता है कि if I say something wrong, then they'll come and say, Mama, this is not right. You did not talk to this. आपको ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी. Yeah. So I think they are my best critics. They are my best friends. And और एक चीज जो मैं बहुत बोलती हूँ कि मैं उनके साथ अपनी सारी गलतियां शेयर करती हूँ. दिस मिस्टेक आई डिड, आई डोंट वांट यू टू डू दिस. आई इनफैक्ट माय डॉटर, आई टेल हर कि जब मैं कॉलेज में थी तो मेरे साथ ये हुआ था, दिस इज व्हाट हैपेंड विद मी. सो दे शेयर एवरीथिंग विद मी. सो दैट्स अ वेरी लवली थिंग. सो उनको बस मैंने कुछ चीज़ें थी हमारे घर में जो बहुत बचपन में मैंने उनको समझाई थी. लाइक पहली बार मेरा बेटा किसी अपने फ्रेंड के घर में गया था एंड दे हैड अ वो जो वीडियो गेम्स होते हैं वहाँ पे उसने देखा एंड ही वाज वेरी एक्साइटेड. सो आई सेड पहले, आई थिंक ही वाज हार्डली इन 3rd or 4th क्लास. सो मैंने उसको बोला बच्चे घर में कुछ रूल्स हैं जो आपको समझने पड़ेंगे. हमारे घर में वीडियो गेम्स नहीं आएंगे. आप चाहे मुझसे 2 बार बोलो चाहे आप 4 बार बोलो, ये हमारे घर में अलाउड नहीं है. 4th क्लास में था, देन आई टोल्ड हिम कि आपको जो फ्यूचर में बनना है वो आपको खुद बनना पड़ेगा. डोंट थिंक दैट योर पेरेंट्स आर डूइंग वेल, वो अच्छा कर रहे हैं तो तुमको बने बनाए सब कुछ घर पे मिल जाएगा. यू हैव टू क्रिएट योर ओन डेस्टिनी. वी आर देयर टू सपोर्ट यू, बट इफ यू एक्सपेक्ट कि हमारे पोजीशन की वजह से तुमको कुछ लाइफ में कुछ इजी हो जाएगा,
वो नहीं होगा. So you have to go to the best of colleges. मैंने बोल दिया था मैं कहीं तुम्हारे लिए डोनेशन नहीं देने वाली हूँ. So if you want to get admission in a good college, so, and then I said कि friends बनाओगे उसका घर देख के नहीं बनाओगे. So you need to have such conversations. You need to tell them कि ऐसा नहीं है. मैंने उनको बोला कि अगर बहुत सारे लोग थे जिनके हमारे घर हम लोगों से बहुत बेटर थे, या उनके पेरेंट्स ज़्यादा कमा रहे थे, या बच्चे वो थे, तो उनको ये बहुत क्लियर कट था कि if you have to make friend with a friend, not with the status of their parents. So I used to tell them कि हमारा घर सिंपल सा होता था, छोटा सा होता था, तो मैं बोलती थी अगर आपका दोस्त हमारे घर नहीं आ सकता या आपको शर्म आती है उसको हमारे घर में बुलाने के लिए, he does not deserve to be your friend. So इनके इतने अच्छे अच्छे दोस्त हैं, इनफैक्ट इनके जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ हमारी उनसे भी ज्यादा अच्छी फ्रेंडशिप्स हैं. सो जो प्रेप में बच्चे के साथ बच्चे पढ़ते थे उनके पेरेंट्स के साथ हमारी अभी भी दोस्ती है. सो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें बहुत बचपन में बच्चों को समझानी पड़ती हैं. यू हैव टू सेट योर रूल्स, टेल देम दैट दिस इज व्हाट इज एक्सेप्टेबल एंड दिस इज व्हाट विच इज नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल. सो अगर हम एक बार गलती माफ करेंगे, दूसरी बार गलती माफ करेंगे, तो फिर वो माफी के स्टेज से बहुत आगे निकल जाए. So you need to have a conversation with them, and they tell you so amazing, इतनी amazing चीजें बच्चे हमको सिखाते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते. We have to listen to them. आपको गुस्सा आता है हाँ आता है. बच्चों के साथ? डांट पड़ती थी बच्चों को? हाँ हाँ पढ़ती थी, बिल्कुल पढ़ती थी So अच्छे से. what was your general approach with children? Was it always a conversation based interaction with them, or was it कि भाई नहीं ये as parents जो हमने बना दिए रूल्स वो वही होंगे? क्या आपका अप्रोच क्या रहता था बच्चों के साथ? नहीं ऐसा नहीं था कि जो हमने रूल्स बना दिए वही रूल्स रहेंगे. सो मुझे ये था कि आई वॉन्ट टू लिसन टू यू, कि तुम्हारा भी जो साइड है जो तुम मुझे बताना चाहते हो, लेट्स हैव अ डिस्कशन. देन आई विल टेल यू व्हाट आर द प्रोस एंड कॉन्स इन दिस, एंड यू विल टेल मी व्हाट आर द प्रोस एंड कॉन्स, एंड देन आई विल टेल यू व्हाई दिस इज एक्सेप्टेबल एंड व्हाई दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल. सो सो ऐसा नहीं था कि बिकॉज आई एम अ पेरेंट सो यू हैव टू लिसन टू मी. इट्स नॉट लाइक दैट. सो एक और चीज़ जो मुझे लगती है बहुत इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि हम लोग कभी कभी बहुत बायस्ड हो जाते हैं. अगर हमारी किसी अपने रिश्तेदार के साथ नहीं बनती या हमारी अपने किसी फ्रेंड के साथ नहीं बनती, तो हम बच्चों को भी ये समझाते हैं उनसे बात नहीं करनी. सो आई थिंक वी शुड गिव देम परमिशन और गिव देम फ्रीडम टू डिसाइड ऑन देयर ओन. एक बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जैसे अगर आप उन्होंने कपड़े क्या पहनने हैं वो भी अगर आप चूज करके देते हो, तो वो एक बहुत छोटी सी चीज है, बट आप लेट देम डिसाइड व्हाट दे हैव टू चूज, व्हाट दे वांट टू वेयर. ये इन छोटी छोटी चीजों से भी डिसीजन मेकिंग बच्चों में आती है. सो बट एज पेरेंट्स कई बार हम लोग बोल देते हैं नहीं ये मैंने ला दिया तो ये तुमको पहना है. बट व्हाट आई टेल देम इज कि तुम मार्केट से खरीद रहे हो, एंड तो लेने से पहले डिसाइड कर लो वेदर यू विल वेयर इट और यू विल नॉट वेयर इट. अगर ये घर जा रहे हैं एंड आई हैव स्पेंड मनी ऑन दिस, then you will have to take it. You think twice before taking it, but I am strictly against wastage. So ये जब बहुत छोटे थे तब से मेरी गाड़ी में एक डस्टबिन होता था. They have never ever thrown even a piece of toffee wrapper on the road. इनफैक्ट मेरा बेटा कई बार बोलता है कि मम्मी आप गाड़ी में बिस्किट्स वगैरह क्यों नहीं रखते हो, आप खाने पीने का सामान क्यों नहीं रखते हो, आप लोगों को दिया करो, आप ये बांट दिया करो क्या. सो हम लोग इनके बर्थडेज वगैरह जो हमारे इनके सेलिब्रेट होते हैं, तो उसमें आई यूज टू टेक देम टू ब्लाइंड स्कूल, लेप्रेसी सेंटर, ये ऐसे जगहों पर लेके जाते हैं, या मंदिर में भंडारा होता है तो इनके बर्थडेज पे ये खुद खाना खिलाते हैं. सो ऐसा नहीं है कि फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट नहीं करते, बट इनको सारी चीज़ें देखनी जरूरी है कि यू डोंट गेट एवरीथिंग ऑन अ सिल्वर प्लेटर. True. नेवर नो व्हेन द सिचुएशन में चेंज, क्योंकि हर किसी की लाइफ में मैं बहुत स्ट्रांगली इस चीज़ में बिलीव करती हूँ कि एक टाइम बहुत अच्छे वाला आता है और एक टाइम बहुत खराब वाला आता है. तो इन लोगों ने अच्छा टाइम देखा है, दे हैव नॉट सीन द बैड टाइम्स. बट हो सकता है कभी ऐसे कुछ, भगवान ना करे ऐसा कुछ हो, बट कोई भी ऐसा टाइम भी हो सकता है जब जब घर में कोई कमी आ जाए. सो हमारे घर में सेट रूल था, अगर घर में एक
चिप्स का भी पैकेट आया है, तो पहले चिप्स उसमें से मेड को ऑफर होंगे जो इनकी केयर टेकर थी या घर में कोई थी, उसके बाद इनको अलाउड था कि मुंह के अंदर एक दाना डालना। सो कुछ कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको सिखानी पड़ती है। एंड आई वोंट से दैट आई एम अ परफेक्ट मॉम, मैं बहुत गलतियां करती हूँ, मैं बहुत गुस्सा भी करती हूँ, but and I won't say that I listen to them every time. I'm learning every day from them and from all of you, definitely. So that's so nice. I think as parents, if we are able to teach the right set of values, to the children, and we're able to make them a better human being, that's everything else falls in place. And that's a very very important thing जो आपने शेयर किया है कि सिचुएशन हमेशा सेम नहीं रहती है, कब अच्छी हो जाए, कब थोड़ी डामाडोल हो जाए, एंड वी शुड ऑलवेज ऑलवेज प्रिपेयर आवर चिल्ड्रन. एंड दिस इज वन एरिया आई थिंक दैट a lot of parents lack. हम लोग बच्चों को कभी भी ट्रू पिक्चर नहीं दिखाते. वी कीप देम अवे फ्रॉम रियलिटी. इट्स गुड टू प्रोटेक्ट देम, बट रियलिटी से दूर रखना इज ऑल्सो नॉट राइट, बिकॉज देन यू आर नॉट प्रोटेक्टिंग देम. बिकॉज वेन दे विल गेट एक्सपोज टू दैट एक्सटर्नल क्रूअल वर्ल्ड, तो ऐसा उनको शॉक लगेगा कि दे विल नॉट बी एबल टू डील विद इट. And every now and then we hear situations and cases of children getting succumbed to the pressure of marks, getting succumbed to the pressure ki unhe kahin admit. I mean, I was reading that this time around the cutoff for DU in certain colleges is 100%. Now, the amount of pressure that it would have put on children, jinke probably, I mean, forget the 70s and the 80s, even the ones who would have got a 95 or a 96, or for that matter, I think the engineering exam, two people topped, both got the same scores, but because of the age criteria, because they cannot have the same ranking, one was first and the other was, I think, second. So, these things parents have to groom the child. सिर्फ उनको materialistic things देना is not important. So, Dr. Bansal, आपने बहुत सादगी से अपनी जर्नी शेयर की है, एंड बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेजेस आपने कन्वे की है. वी हैव Poonam Saxena at Facebook who is saying that you have touched her soul, and she's very very happy to hear you. So is being said by Mrs. Usha Vardhan Sharma, and Poonam again says that she's feeling blessed to hear you. So So you definitely are creating a positive impact in any and every way. And before we conclude this conversation, two things. One, your piece of advice to all the mothers or parents who are watching us or who will watch us. And दूसरा रिक्वेस्ट कि आपसे एक कविता सुने बगैर मैं आपको जाने नहीं दे सकती. So something that you would have written for your children, या anything related to mother. वैसे भी नवरात्र का सीजन उत्सव है, so anything that you would festive season is on. Okay. So एक तो पहली चीज जो as a message that you said, which I would like to give to my to parents is, we have to accept that as parents we are not perfect. हम खुद ही perfect नहीं है, so we should not expect our children to be perfect. So and second thing जो बहुत important है, जो हम सब करते हैं, I would have also done it and I also do it, कि कंपैरिजन मत करिए किसी भी बच्चे का किसी और के साथ में, एंड डू शेयर योर मिस्टेक्स कि आपने क्या गलतियां की. सो आई यूज्ड टू टेल देम दिस इज व्हाट आई डिड रॉन्ग, बट आई वांट यू टू लर्न अ लेसन फ्रॉम इट. ओके, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. और छोटी छोटी वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं सिखाने के लिए. पानी वेस्ट मत करो, इलेक्ट्रिसिटी बंद करो, if AC is not needed, don't switch it on. It's not that I can't afford it. I can. Okay, but ये चीज बच्चे को कभी नहीं लगनी चाहिए कि हमारे पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं तो सब कुछ मेरा है. बिल्कुल भी ऐसा नहीं. आपको अपने बच्चे को अपने पैरों पर खड़े होने देना पड़ेगा. आपको सिर्फ एक उसका एक माध्यम बनना है. यू हैव टू जस्ट बी देयर. एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मुझे लगती है कि I had a very frank conversation with my son few years back, and I said, when he was going on his first solo trip with friends from school, I said कि मैं तुमको एक ही चीज बोलना चाह रही, you are permitted to go, you are going with girls, that's okay, but अगर मुझे कभी भी ये बात सुनने को मिल गई that you misbehaved with a girl, or you smoked, or you took alcohol, and I am not aware of it, then
then it's not going to be right. I said मुझे कभी किसी लड़की की इज्जत को लेके तुम्हारे अगेंस्ट कोई भी कंप्लेंट पता चली या तुमने कुछ किया, then I'm not going to accept it. You flunk, तुम्हारे एग्जाम्स में कम मार्क्स आए, I'm okay with that. या तुमने किसी के पेरेंट्स की या किसी और बंदे के साथ मिसबिहेव किया, you don't give respect to your elders, that is not acceptable to me. You get marks less, I'm okay with that. सो इसी और दूसरी चीज जो एक बेटी के साथ जो एक कन्वर्सेशन बहुत जरूरी थी या बेटे के साथ भी थी, वो ये थी, यू हैव टू टेल देम दैट यू आर विद देम ऑलवेज, come what may. So I think this is a very very important lesson which I learned, that I told them कि तुम्हारी लाइफ में बहुत कुछ गलत होगा, you might get inclined towards someone, my daughter is a teenager now, you might fall for someone, you might have a heartbreak, but अगर कोई भी चीज गलत होती है, प्लीज कम बैक एंड टेल मी. मैंने उनको एक ही बात बोली कि कोई भी चीज तुमको ऐसी लगती है कि ये बात मैं मम्मी को कैसे बताऊं, वो ही बात है जो तुमको मुझे बतानी है. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई वांट टू लिसन फ्रॉम यू. आई माइट स्कोल्ड यू, आई माइट स्लैप यू इवन, आई माइट गेट एंग्री विद यू, बट इफ यू विल टेल मी, आई कैन एश्योर यू दैट आई विल सॉर्ट इट आउट फॉर यू. फिर चाहे किसी से भी लड़ना पड़े तुम्हारे लिए, आई एम देयर. सो ये वाली चीज अगर बच्चों के पास ये रहता है कि उनको मैंने बोला तुम्हें कोई चीज पापा की अच्छी नहीं लगती, तुमको मेरी कोई चीज अच्छी नहीं लगती, यू कैन कम बैक, आई विल go to papa and tell that this is what they want, but there has to be a justification. तुम किसी के साथ हमारा कुछ गलत हो जाता है, झगड़ा हो जाता है, तुमसे कुछ गलत हो जाता है, प्लीज कम बैक एंड टेल मी. So this is very very important to tell your children that they, and I tell them I have committed mistakes, I did this wrong, this was wrong, but I said कि इतना जरूर मैंने ये भी बोला है अपनी बेटी को कि मुझे चाहे मत बताओ, भाई को बता दो. भाई को नहीं बता सकते, मामा को बता दो, चाचा को बता दो, किसी को भी बता दो, but someone in the family should know that something is wrong and it should reach me. So if at any point of time you feel that this thing, how should I tell my mom? That is one thing which I need to know. That's the alarm that you should be, Yeah. paying attention to. That's so true. That's so true. So, very important message by Dr. Bansal. Parents are not perfect. Don't expect your children to be perfect. Let them make mistakes. Also share your own mistakes. And above all, make them understand the value of life. Make them understand the value of everything. Just because you have it in abundance, that doesn't mean that they can very easily waste it. And there should always be a flow of communication between parents and children. And the key word is, क्या मैं ये पेरेंट्स को बता पाऊंगा या बता नहीं पाऊंगी. The moment that thought comes to your mind, which means that either that thing is not right, or you know it for a fact that your parents will object for it. So you must reach out to your parents or your sibling or anyone trustworthy within the family. So, Dr. Bansal, आपकी कविता. Okay, कौन सी सुनाऊं, मुझे नहीं समझ ध्यान समझ. So it has to be some specific topic or जो आपका मन, anything, whatever you like. Okay, okay, okay. Okay, मैंने सोचा नहीं था, so I didn't think anything. Okay, so वो सुना देती हूँ एक, because थोड़ा serious discussion हो गया है, so just a little मस्ती, मतलब थोड़ा सा different side of me. Sure. So this is तारों की ओढ़नी ओढ़ मचलती फिरूं मैं, कुछ ऐसे सुनहरे ख्वाब बुनूं मैं, तारों की ओढ़नी ओढ़ मचलती फिरूं मैं, ओस की बूंदों जैसे कीमती मोती जरूरतमंदों में बांटती चलूं मैं, सूरज की सुनहरी किरणों से अपने सपने सेकती चलूं मैं, कोयल सी प्यारी बोली बोल सब तरफा प्यार बरसाती चलूं मैं, कुछ ऐसे सुनहरे ख्वाब बुनूं मैं, तारों की ओढ़नी ओढ़ मचलती फिरूं मैं, गुलाब सी महक का इत्र रिश्तों में बिखेरती चलूं मैं, तितलियों से खूबसूरत ख्वाबों से जिंदगी रंगती चलूं मैं, गीली मिट्टी की सौंधी खुशबू खुश्क दिलों में बसाती चलूं मैं, कुछ ऐसे सुनहरे ख्वाब बुनूं मैं, तारों की ओढ़नी ओढ़ मचलती फिरूं मैं, सूखी रेत से गमगीन क्षणों में भी यादों की पोटली ले चहकती चलूं मैं,
दुखों की बरसात में भी आसमां में इंद्रधनुष निहारती रहूं मैं, नदी की निर्मल धारा सी हिचकोलों में भी निरंतर बहती चलूं मैं, कुछ ऐसे सुनहरे ख्वाब बुनूं मैं, तारों की ओढ़नी ओढ़ मैं चलती फिरूं मैं. Beautiful. And this truly represents you. Thank you so much. आप है, आप, you are the poetry that you have shared. Perfect. So, Dr. Bansal, we've spoken about the journey of you as a mother, but I would also like to, take this opportunity for you to maybe speak a few words or a few, spend a few minutes to talk about, women and, themselves checking for any kind of challenges that they may face. I mean, sorry for the lack of words. I don't want to use any negative words, but some guidance through this platform for women to take care of themselves and how they can know if they are in any kind of a situation with respect to oncology. Okay, with respect to oncology. Okay, Yes, so please. you want me to talk about symptoms of cancer for females? Little bit हाँ थोड़ी guidance अगर आप दे सके for all the mothers, because once you're a mother you feed the child and there are a lot of complications and challenges that one can face. So if you could throw some light on this Yeah, for the next maybe couple of minutes. yeah. So I think I would say that a female has to take responsibility of our health the way she takes responsibility of everyone else in the family. So ये बात मैं हमेशा से बोलती आई हूँ कि हमारी हेल्थ हमारी खुद की जिम्मेदारी है, और एक फीमेल अगर ठीक होती है तो पूरा घर सुचारू रूप से चलता है, ये मैं हमेशा बोलती हूँ. Correct. So make yourself a priority. This is very important. So I tell them that if you love yourself, if you love yourself, if you love your life, then you have to understand the importance of mammography. You have to take time out for pap smear. You have to take out time for getting your regular checkups. You have to take out time for having meals on time, sleeping on time, taking good calcium supplements, और अपने न्यूट्रिशन का पूरा ध्यान रखें और अपनी बॉडी को डस्टबिन नहीं बनाएं. लेफ्ट ओवर खाना खत्म नहीं करना है प्लीज. बहुत हमारी मेट्स हैं, उनको आप दे दोगे, दे आर सो डेफिशिएंट इन न्यूट्रिशन, वो आपका काम एक्स्ट्रा कर देंगे खुश होके. अपनी बॉडी को अपना डस्टबिन बिल्कुल मत बनाइए, और इसी तरह अपने माइंड को अपना टॉक्सिक वेस्ट बिन नहीं बनाना है विद टॉक्सिक थॉट्स. So regarding coming back to health, so we have to take care of our mental health, physical health, spiritual health and financial health, all of them. So कुछ ना कुछ आप काम जरूर करिए. आप हाउस वाइफ रहें तो भी आजकल बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, यू कैन अर्न फ्रॉम होम. सो एवरी फीमेल हैज टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और हेल्थ को लेके डू अ सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन. Every female should do a monthly self breast examination starting from 20 years of age. अभी टाइम की कमी है तो मैं नहीं बता पाऊंगी कैसे, बट देर आर एम्पल वीडियोज ऑन यूट्यूब जिससे आप देख सकते हो कि अपना सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कैसे करना है. अगर आपका कोई ब्रेस्ट में लंप है उसको इग्नोर मत करिए, कोई गर्दन में गांठ है उसको इग्नोर मत करिए, आपको थकान जरूरत से ज्यादा हो रही है, आपका हीमोग्लोबिन लेवल कम हो रहा है, आप दूध नहीं पी रहे हो, आपके कैल्शियम रिलीज हो रहा है बॉडी से, तो 35 की एज के बाद से ही याद रखिए, 35 की एज के बाद से बोन्स में से कैल्शियम लूज होना शुरू हो जाता है. तो इसलिए अपना कैल्शियम, विटामिन सप्लीमेंट्स, मिल्क सप्लीमेंट्स, वो सब मिल्क लेना बहुत जरूरी है. अब प्रेगनेंसी के टाइम पे भी अपनी हेल्थ को इग्नोर मत करिए, क्योंकि बच्चा तो अपनी फीड पूरी कर ही लेगा, वो अपनी रिक्वायरमेंट का कैल्शियम ले लेगा, बट यू हैव टू सप्लीमेंट योरसेल्फ विद कैल्शियम, विटामिन डी. न्यूट्रिशन का आपको ध्यान रखना है, नींद अपनी पूरी रखनी है. अगर कोई अनयूजुअल वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है मीनोपॉज से पहले या मीनोपॉज के बाद, मतलब आपके मंथली पीरियड से अलावा अगर गंदा पानी आ रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, आपको बैक पेन हो रहा है, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो. गॉल स्टोन्स को इग्नोर मत करिए, बिकॉज गॉल स्टोन्स की जो पित्त की थैली की पथरी होती है वो बहुत बार गॉल ब्लैडर कैंसर में कन्वर्ट हो जाती है. सो प्लीज डोंट इग्नोर योर गॉल स्टोन्स. अगर आपका हीमोग्लोबिन लेवल कम हो रहा है, आपके एनर्जी लेवल्स कम हो रहे हैं, वो ध्यान रखिए. 40 ईयर्स के बाद साल में एक बार कम से कम अपना सीबीसी, लिवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, एक्सरे चेस्ट,
पूरे पेट का अल्ट्रासाउंड वो कराना जरूरी है, क्योंकि अगर आप पूरे पेट का अल्ट्रासाउंड कराते हो तो उसमें लिवर, स्प्लीन, किडनीज, कोई गॉल स्टोन्स, यूरिनरी ब्लैडर, यूट्रस, सर्विक्स, उन सब के बारे में हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स का पता चल जाता है। पैप्समियर जरूर कराइए 25-30 ईयर्स के बाद, मैरिज होने के बाद 3 साल तक रेगुलर पैप्समियर कराना जरूरी है, जिससे बच्चेदानी के मुंह के कैंसर का पता चल जाए। Get cervical cancer vaccine, get yourself vaccinated and get your daughter vaccinated if she's above 9 years of age. स्टूल अगर 50 ईयर्स के ऊपर हैं आप तो स्टूल टेस्ट कराइए टू सी फॉर एनी हिडन ब्लड, गेट अ यूरिन रूटीन टेस्ट टू सी फॉर एनी प्रॉब्लम इन द किडनीज। ये बेसिक बेसिक बहुत सारी चीजें हैं जो अपनी हेल्थ को प्लीज इग्नोर मत करिए। दैट्स माय ओनली थिंग दैट आई हैव टू से। अगर मेनोपॉज हो गया उसके बाद अगर एक भी एपिसोड ब्लीडिंग का होता है, थोड़ी सी भी स्पॉटिंग होती है, उनको प्लीज इग्नोर मत करिए। फीमेल्स को भी लंग कैंसर हो सकता है, तो अगर आपके हस्बैंड्स स्मोक करते हैं तो भी आप लंग कैंसर के लिए रिस्क पर हैं। और बहुत सारे नॉन स्मोकर्स को भी लंग कैंसर होता है, सो उसको भी आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। एंड आई वुड स्टिल से डोंट टेक एल्कोहल, बिकॉज एल्कोहल से भी अगर आप स्मोकिंग करते हो तो प्रेगनेंसी के दौरान अगर आप स्मोकिंग करते हो तो उसकी वजह से बेबी का वेट कम हो सकता है। और आपको जो फीमेल स्मोक करती हैं या अल्कोहल लेती हैं उनको ब्रेस्ट कैंसर का भी रिस्क बढ़ जाता है। So don't and if you are working, even then breastfeeding is very important. Bearing child on the right time is very important. Getting married on the right time, breastfeeding your children, bearing children at the right time, वो सब चीज़ें भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। तो करियर भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन करियर के साथ में ये वाली चीज़ें भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। सो उनको भी ध्यान रखिए कि कैसे करना है। इवन इफ देयर इज, अगर कोई ब्रेक भी आता है करियर में तो भी अगर आपके अंदर इतनी वो है, विल पावर है कि मेरे को ये करना है, तो यू कैन स्टिल बाउंस बैक। बट जस्ट डोंट लूज टच, अपने प्रोफेशन से टच मत लूज करिए। आजकल हम लोगों के टाइम पे उतने ऑप्शंस नहीं थे, आजकल वर्क फ्रॉम होम के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। लेकिन अपना जो ये वाला जो फैमिली एस्पेक्ट है उसको भी इक्वल इम्पोर्टेंस देना जरूरी है। माइट भी मैं थोड़ा सा हो सकता है, यू माइट फील दैट शी इज अ लिटिल बैकवर्ड इन दिस कॉन्सेप्ट, बट बेयरिंग चिल्ड्रन ऑन द राइट एज 30 के बाद में अगर आप प्रेग्नेंट होते हो तो उसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होने का रिस्क होता है। तो हैव 2 चिल्ड्रन, मैं ये भी बोलती हूँ हैव 2 चिल्ड्रन, बिकॉज उनकी आपस में बॉन्डिंग इतनी प्यारी होती है कि दूसरा बच्चा तो आपका पहले वाला बच्चा ही पाल लेता है। और सो ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है लाइफ का, उसको इग्नोर नहीं कर सकते। Wonderful. So thank you so much, Dr. Bansal, for sharing your journey, for being that inspirational mother for a lot of people. And as Dr. Bansal said in her last few words that you may want to take a break from your career, but don't lose touch. Balance every aspect of your life. She's a live example where she did take a break when she felt that she had to be with her child, and but yet she did everything to keep in touch with her profession, and with all the challenges and difficulties that she's faced, today she is where she is, and her children are doing fantastically well. So indeed, Dr. Bansal, it was a pleasure to have this conversation with you. So much to learn, and thank you so much for being here. And for all of you who are watching us or will watch us, this is Ekta Sehgal Malhotra at the Motherhood Club Talk Show. We will be back soon with another interesting journey of another mother. But we shall be back after the Shara. Let us all enjoy the festivity time and have a great festival of Navratra, Ram Navami, and we shall meet after the Shara. So take care and have a great evening ahead. Thank you so much, Dr. Bansal. Thank you so much. And I'm an evolving mother. I'm still learning how to be a good mother. You are doing good, and I'm sure you will continue to do the good work. Thank you so much. It was a pleasure. And thanks to all the listeners who joined us today. And thanks, Ekta, for bringing up such sensitive topics. And I think everyone's journey is an inspiration for us. Thank you so much. Thank you. Take care. Thank you.